کس کس نے آج کی حمد و ستائش سے برکت پائی ہے؟ سب نے پائی ہے؟ تو پھر آئیں زوردار تالیاں بجا کر خداوند یسوع مسیح کے نام کو جلال دیں گے. ہاللیلویا، ہاللیلویا، ہاللیلویا. یسوع مسیح کے نام کی، یسوع مسیح کے نام کی. پریز گاڈ، پریز گاڈ، پریز گاڈ. خدا وعدوں کا سچا خدا ہے، اور کلام مقدس میں لکھا ہے کہ جب ایماندار ستائش کرتے ہیں تو اس کا تخت لگ جاتا ہے. آمین. اور اس وقت اس کا تخت یہاں پر لگا ہوا ہے. ہمارے دل شکر گزاری سے بھرے ہیں کہ خدا نے آج ہمیں اپنی حضوری میں آنے کا موقع دیا ہے، اور نہ صرف موقع دیا ہے بلکہ اس سے برے کے لہو سے ہمیں پاک کر کے اس لائق بنایا ہے کہ ہم اس سے باپ کہہ سکیں، برے کی تمجید کر سکیں، اور اس کی بادشاہت میں شادمان ہوں. آمین، آمین. سارا عزت و جلال یسوع جی کے نام کو ملے. عزیزو، آئے ہم خدا ان کے مقدس پاک کلام میں سے پڑھیں گے. آج دوسرا ایڈونٹ سنڈے ہے، اور آج کا دن جو ہے وہ پیس کا دن ہے. آمین. اور یہ سیکنڈ سنڈے سے سیلیبریٹ کیا جاتا ہے کہ اس زمین پر خداوند یسوع مسیح کے وسیلہ سے امن اور سلامتی قائم ہوئی ہے. آمین. آئے ہم خداوند کے مقدس پاک کلام میں سے یسایہ نبی کا صحیفہ، اس کا 9واں باب اور اس کی 6 آیت پڑھیں گے. اور میں چاہوں گا کہ چرچ میرے پیچھے اس آیت کو دہرائے بلند آواز سے. اس لیے ہمارے لیے ایک لڑکا تولد ہوا، اور ہم کو ایک بیٹا بخشا گیا، اور سلطنت اس کے کندھے پر ہوگی، اور اس کا نام عجیب، مشیر، خدائے قادر، ابدیت کا باپ اور سلامتی کا شہزادہ ہوگا. آمین، آمین. ایک دوسرے کی طرف مڑیے اور کہیے، یسوع سلامتی کا شہزادہ ہے، یسوع سلامتی کا شہزادہ ہے. یسوع مسیح میں آپ کی سلامتی ہو. آمین. تشریف رکھیے. میرے عزیزو، ہم ایسے دور میں زندہ ہیں جہاں انسان کا دل بہت ساری فکروں سے بھرا ہوا ہے، بے چینی کا شکار ہے، اور فرسٹریشن نے ہماری دلوں میں جگہ کر رکھی ہے. ہماری تسلی، ہمارا اطمینان جو ہے وہ فکروں اور فرسٹریشنز کا شکار ہو گیا ہے، اور لوگ ہر جگہ سلامتی کو تلاش کر رہے ہیں. لوگ اطمینان اور تسلی سے بھرنا چاہتے ہیں. آپ سب اپنی زندگیوں کے حال سے واقف ہیں. آپ ہر دن جب بیدار ہوتے ہیں تو ہر دن ہمارے لیے فکریں لے کر آتا ہے، اور ہر دن ہم اس بات کے لیے فکر کرتے ہیں کہ آج ہم کیا کھائیں گے، ہم کیا پیئیں گے، ہم کیا پہنیں گے، اور ہماری سٹیبلٹی کیسے قائم رہے گی. اور ان ساری باتوں کو ہم پریشانی کہتے ہیں، جو کہ اطمینان اور تسلی کے اپوزٹ ہیں. ایسا ہی ہے میرے عزیزو. کوئی دولت میں سکون ڈھونڈتا ہے، کوئی رشتوں میں، کوئی تفریح میں، اور
किसी को अच्छा खाने से जो है वो तसल्ली मिलती है, लेकिन ये तमाम चीजें जो हैं ये आने जाने वाली चीजें हैं। आप हर वक्त अच्छा पहन नहीं सकते, आप हर वक्त अच्छा खा नहीं सकते, और हर वक्त आप अपने रिश्तों की कुर्बत में रह नहीं सकते। आपको ना चाहते हुए भी उनसे जुदा होना पड़ता है। That's the reality of the life। ऐसे ही है, किसके मां बाप सदा उसके साथ रहते हैं, जुदा हो जाते हैं। हमारे बहन भाई जुदा हो जाते हैं, हमारे साथी, हमारी औलाद हमसे जुदा हो जाती है और हम दुख से भर जाते हैं। लेकिन कलाम हमें आज जिस बात को सिखाना चाहता है वो है तसल्ली, इत्मीनान और अमन, जो कि खुदावंद यीशु मसीह के वसीला से हमारी जिंदगियों में कायम रहता है। मेरे अजीजों, ये बात इंतहाई अहम है कि हमारे दिल के अंदर जो बेचैनी और बेसकूनी होती है, दुनिया की कोई ऐसी चीज नहीं है जो इस तूफान को थमा सके। हम अक्सर जब हमारे अजीज हमसे जुदा होते हैं तो हम दुख और तकलीफ और परेशानी के आलम में जब मातम करते हैं, जब आओ नाला करते हैं, तो बहुत सारे लोग आकर हमें तसल्ली देते हैं, लेकिन वो तसल्ली हमारे लिए दायमी नहीं होती, वो आरज़ी तसल्ली है। और जैसे वो शख्स हमसे जुदा होता है, हम दोबारा गम से भर जाते हैं। तो ये एक असल हकीकत है कि हमारी जिंदगी की बेचैनी, हमारी जिंदगी का दुख, हमारी जिंदगी का कर्ब जो है वो दुनिया की तसल्लियों से कभी खत्म नहीं हो सकता। इसके लिए हमें कोई और तरद्दुद चाहिए, इसके लिए हमें कोई और दवा चाहिए, इसके लिए हमें कोई और सोर्स चाहिए जो परमानेंट सोर्स हो पीस की, सेटिस्फैक्शन की, तसल्ली की। मेरे अजीजों, खुदावंद यीशु मसीह हमें ऐसी तसल्ली देता है जो कभी दुनिया नहीं दे सकती। आमीन। और जो तसल्ली खुदावंद यीशु मसीह हमें देता है वो दुनिया छीन भी नहीं सकती। आमीन। उस दुनिया को इंसान खुद तो खो सकता है, उस तसल्ली को इंसान खुद तो खो सकता है, लेकिन दुनिया उससे छीन नहीं सकती जब तक यीशु उसकी जिंदगी में कायम है। हालेलुया। हम अक्सर गाते हैं हालात बदल जाते हैं यीशु तेरे आने से, और यीशु के आने से दुख शादमानी में बदल जाते हैं, मौत जिंदगी में बदल जाती है, और कमजोरी शेरजोरी में बदल जाती है। और ये फक्त और फक्त मेरे और आपके यीशु मसीह के वसीला से है। इस बात को आपने याद रखना है कि जो तसल्ली, जो इत्मीनान, जो शादमानी यीशु मसीह के वसीला से मिलती है, दुनिया उसे छीन नहीं सकती। ऐसी सलामती जो हर तूफान में हमें संभालती है, हर मुश्किलात में हमें संभालती है। जो खुदावंद यीशु मसीह पर ईमान रखते हैं, आप अक्सर एक गीत भी गाते हैं, ये कह दो मुश्किलात से कि मेरा खुदा तुम्हारी मुश्किलात से क्या है, बड़ा है। हमारा खुदा हमारी मुसीबतों से, हमारे दुख से, हमारे कर्ब से बड़ा खुदा है। और जब हम उसमें तसल्ली पाते हैं तो फिर कोई चीज हमें गिरा नहीं सकती। हालेलुया, हालेलुया। मसीह की तसल्ली हमें हर दुख में मजबूत करती है। वाह, क्या खूबसूरत बात है। मसीह की तसल्ली हमें हर दुख में क्या करती है, मजबूत करती है। रात हम एक इबादत में जा रहे थे तो शरा फैसल पे जाते हुए हमारा एक्सीडेंट हो गया, और बहुत खतरनाक एक्सीडेंट हुआ। अगर आप बाहर जाके गाड़ी देखेंगे तो आपको अंदाजा होगा कि कितना बुरा एक्सीडेंट हुआ था। मैं, शाहान और रूथ गाड़ी में थे। खुदा ने हमें महफूज रखा। हालेलुया, हालेलुया। मैं उतरा, और उतर कर जब मैंने गाड़ी देखी, शाहान ने और मैंने, हम वापस आके बैठे तो रूथ ने एक तसल्ली मुझे दी और उसने कहा खुदा ने हमारी जिंदगियां महफूज रखी हैं। हालेलुया। बाकी सारी चीजें इस जिंदगी
की अहमियत से कमतर हैं। और जब खुदा अपने बेटे को इस दुनिया में भेजता है तो वो हमारी जिंदगी को महफूज करता। हालेलुया, हालेलुया। वो हमें हर दुख में मजबूत रखता है, हर परेशानी में हमें मजबूत रखता है, हर नुकसान में हमें मजबूत रखता है। वो लोग जो खुदावंद यीशु मसीह पर उम्मीद रखते हैं वो इस बात से वाकिफ हैं कि लोगों का दुख उनके नुकसान में बढ़ जाता है। बहुत सारे लोग अपनी मुसीबतों और दुखों और नुकसानात में हार्ट अटैक का शिकार हो जाते हैं। वो आसाबी तौर पर कमजोर हैं, लेकिन मसीह पर ईमान रखने वाले आसाबी तौर पर और ईमानी तौर पर मजबूत रहते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि वो ये जानते हैं कि ये हमारा नहीं बल्कि खुदा का अता करदा है। खुदा ने हमें ये दिया है और वो और देने की कुदरत रखता है। हालेलुया, हालेलुया। तो ईमानदारों की जिंदगी में परेशानियां, मुसीबतें, दुख जो हैं उनकी तसल्ली, उनके इत्मीनान पर कभी गालिब नहीं आ सकती। और आज हम देखेंगे कि यीशु मसीह हकीकी सलामती और हकीकी तसल्ली कैसे बख्शता है। आमीन। आज जिस बात को हम सीखने वाले हैं वो ये है कि खुदावंद यीशु मसीह हकीकी सलामती और हकीकी तसल्ली किस तरह बख्शता है। डिवाइन पीस हमें फक्त और फक्त खुदावंद यीशु मसीह में मुहैया है। मेरे अजीजों, जब हम मरकस की अंजील को पढ़ते हैं तो मरकस की अंजील में एक वाक्य दर्ज है कि खुदावंद यीशु मसीह ने शागिर्दों से कहा, आओ हम झील के पार चलें। कलाम क्या है शागिर्दों के साथ कि आओ हम झील के पार चलें। और कलाम में लिखा है कि जब वो झील में थे तो एक बड़ा तूफान आया और ये तमाम के तमाम शागिर्द जो हैं खुदावंद यीशु मसीह के, वो एक माहिर माहीगीर है। वो अपने बचपन से लेकर अपनी जवानी और अपनी पुख्ता उम्र तक क्या करते आए हैं? मछलियां पकड़ते आए हैं। जिस झील में आज वो खुदावंद यीशु मसीह के साथ कश्ती में है, इस झील का सफर उन्होंने बारहा कर रखा है और बारहा उन्होंने तूफानों का सामना किया होगा। और कलाम मुकद्दस में लिखा है कि पानी और हवा जो थी वो कश्ती पर हावी हो गई और वो डर गए कि आज हमारी जिंदगी का इख्तिताम हो जाएगा, आज हम इस तूफान से नबरदाश्त नहीं हो पाएंगे, आज हमारी कुव्वत, आज हमारी महारत, आज हमारा तजर्बा जो है वो इस तूफान से कमजोर है। लेकिन मेरे अजीजों, जिस तूफान की जद में कश्ती में यीशु हो, वो कश्ती डगमगा तो सकती है, डूब नहीं सकती। हालेलुया, हालेलुया। जिस जिंदगी में यीशु है, तूफान उस जिंदगी को हिला तो सकते हैं, उसे शेक तो कर सकते हैं, लेकिन कभी उसे गिरा नहीं सकते, क्योंकि वो घर है जो चट्टान पर बनाया गया है। हालेलुया। वो चट्टान पर बनाए हुए घर में रहता है और वो चट्टान कोई और नहीं बल्कि मेरा और आपका खुदावंद यीशु मसीह है। हालेलुया। मेरा और आपका खुदावंद यीशु मसीह है। मेरे अजीजों, यीशु हमें तूफान से खाली जिंदगी का वादा नहीं देता। हालेलुया। यीशु हमें तूफान में फक्त जिंदगी का वादा नहीं देता, बल्कि वो तूफानों में रहने के बावजूद हमें कायम रखता है। हालेलुया, हालेलुया। वो हमें ऐसी जिंदगी का वादा नहीं देता जो तूफानों से खाली होगी। वो ऐसी जिंदगी का हमें वादा नहीं देता जिसमें मुसीबतें, परेशानियां कतई नहीं आएंगी। आपकी जिंदगी में आजमाइशें आएंगी, आपकी जिंदगी में मुसीबतें आएंगी, आपकी जिंदगी में आप गिराए जाने के लिए हमला आवर आप पर हमला करेंगे, लेकिन खुदावंद यीशु मसीह इन तमाम हालात में हमारे साथ खड़ा होगा।
हालेलुया, हालेलुया। उन्होंने आकर कहा, ऐ उस्ताद उठ, हम हलाक हुए जाते हैं। उनका तजर्बा, उनकी महारत, उनकी तमाम तर जिंदगी का निचोड़ जो है वो इस नुक्ते पर मरकूज है कि आज ये तूफान हमें हलाक कर देगा। और यीशु मसीह ने उठकर कहा, ऐ कम है तका तो मैं कब तक तुम्हारे साथ रहूंगा। और यीशु मसीह ने कहा, ऐ पानी और ऐ हवा थम जा। हालेलुया, हालेलुया। और कलाम मुकद्दस में लिखा है कि पानी और हवा जो थे वो थम गए, तूफान साकित हो गया। और मेरे अजीजों, इसी तरह खुदावंद यीशु मसीह पर ईमान रखने वालों की जिंदगी में हर तूफान साकित हो जाता है, हर तूफान थम जाता है, क्योंकि वो दायमी तसल्ली और इत्मीनान का सरचश्मा है। और मौरख ये कहते हैं कि उसके बाद उस झील में कभी तूफान नहीं आया। हालेलुया, कभी उस झील में फिर तूफान नहीं। और इसलिए कि हमारा खुदावंद यीशु मसीह हमारी जिंदगियों में काम करता है। मेरे अजीजों, यीशु मसीह ना सिर्फ हमारे जिंदगी में आने वाले तूफानों, हमारी जिंदगी में आने वाली मुसीबतों, हमारी जिंदगी में आने वाली परेशानियों, आजमाइशों में हमें तसल्ली देता है, बल्कि खुदावंद यीशु मसीह हमारे दुख में भी हमें तसल्ली देता है। हालेलुया, हमारे दुख में भी हमें तसल्ली देता है। और अगर आप मेरे साथ निकालिए 2 कुरिन्थियों और उसका पहला बाब और इसकी 3 और 4 आयत, अगर कोई निकाल ले तो वो मेरे लिए पढ़ दे। 2 कुरिन्थियों और उसका पहला बाब और उसकी 3 और 4 आयत। कलाम मुकद्दस में लिखा है, हमारे खुदावंद यीशु मसीह के खुदा और बाप की हम्द हो, जो रहमतों का बाप और हर तरह की तसल्ली का खुदा है। हालेलुया। किस बाप की तमजीद हो, किस खुदा की तमजीद हो, जो हर तरह की रहमतों का बाप और हर तरह की तसल्ली का खुदा है। हर तरह की तसल्ली का खुदा है। वो तसल्ली चाहे हमारी जिंदगी के तूफानों में चाहिए, हमारी जिंदगी के दुखों में चाहिए, हमारी जिंदगी की मुसीबतों में चाहिए, हमारी जिंदगी की आजमाइशों में चाहिए, हमारी जिंदगी की मुफलसी में चाहिए। कलाम कहता है हमारा खुदा हर तरह की तसल्ली का खुदा है। हालेलुया, हालेलुया। अगर आप किसी कॉस्मेटिक्स की दुकान पे जाएं और आपको वहां पे लिपस्टिक दरकार हो और वहां पे सब कुछ और लिपस्टिक ना हो, तो फिर आपके लिए वो दुकान क्या है? बेकार है। आप किसी बेकरी में जाएं और उसमें हर तरह के बिस्किट्स हों, हर तरह की पेस्ट्रीज हों, हर तरह के दूसरे लवाजमात हों, लेकिन अगर आपको वहां पर केक चाहिए और केक ना हो तो वो बेकरी आपके लिए क्या है? बेकार है। अगर आप तसल्ली की दुकान में घुसें, तसल्ली की दुकान में जाएं और वहां पर आपको आपके दुखों की तसल्ली दरकार हो और वहां पे वो मुयस्सर ना हो, तो फिर आपके लिए वो तसल्ली की दुकान जो है वो क्या होगी? बेकार होगी। और हमारे बहुत सारे दोस्त ऐसे हैं जो अपनी तसल्ली जाकर मज़ारों पे ढूंढते हैं। आज भी मैं बहुत सारे मसीहियों को जानता हूं जो अपने घरों में अलम लगाए हुए हैं। बहुत सारे ऐसे हैं जो कब्रों पर जाते हैं। बहुत सारे ऐसे हैं जिन्होंने अपने मुर्शिद रखे हुए हैं। बहुत सारे ऐसे हैं जिनके खास बुजुर्ग हैं। बहुत सारे ऐसे हैं जिनके घरों में, उनकी कोनों में दिए जल रहे होते हैं। बहुत सारे ऐसे हैं जो कि देवी देवताओं की पूजा कर रहे हैं और उनसे अपनी तसल्ली को तलाश रहे हैं, लेकिन ये तसल्ली उन्हें कभी मुयस्सर नहीं होगी, क्योंकि इस तसल्ली का बाप कौन है? हमारा जिंदा खुदा है। हालेलुया, हालेलुया। इस तसल्ली का वो खुदा है जिसके लिए हम कहते हैं कि वो यहोवा शालोम है। वो यहोवा शालोम है, यानी वो सलामती का खुदा है।
तसल्ली का खुदा है। और मुकद्दस पौलुस कहते हैं उस बाप की हम्द हो जो रहमतों का बाप है। हालेलुया। रहमतें उस बाप की तरफ से जारी होती हैं और हर तरह की तसल्ली का खुदा है। चौथी आयत में लिखा है वो हमारी सब मुसीबतों में हमको तसल्ली देता है ताकि हम उस तसल्ली के सबब से जो खुदा हमें बख्शता है उनको भी तसल्ली दे सकें जो किसी तरह की मुसीबत में है। हालेलुया, हालेलुया। हमारी हर तरह की मुसीबत में हमारा खुदा हमें क्या करता है? तसल्ली बख्शता है ताकि हम इस लायक हों कि हम दूसरों को क्या कर सकें? तसल्ली दे सकें। क्या खूबसूरत बात है, क्या ईमान अफरोज बात है। कलाम मुकद्दस में लिखा है जो तुम्हें कलाम सुनाते हैं उन्हें अपनी अच्छी नेमतों में क्या करो? शामिल करो। कलाम कहता है कि दाएं में चलने वाले बैल का मुंह ना बांधो। मजदूर अपनी मजदूरी का क्या है? हकदार है। अपने जिंदगी में अपनी नेमतों और बरकतों को दूसरों के साथ बांटना ईमानदारों का फर्ज है। और कलाम कहता है वो जो रहमतों का बाप है वो हमें अपनी रहमतों और बरकतों से नवाजता है। ज़बूर नवीस कहता है वो अपनी उम्दा बरकतें बख्शने में पेशकदमी करता है और ये लाजिम है कि हम अपनी बरकतें दूसरों के साथ बांटने के लायक हों। अंधा अंधे को राह नहीं दिखा सकता। जिसकी जिंदगी में खुद तसल्ली ना हो वो किसी और को कैसे तसल्ली देगा? जिसकी जिंदगी में खुद बरकत ना हो वो किसी के लिए बरकत का सबब कैसे बनेगा? और कलाम कहता है रहमतें खुदा की तरफ से हैं, तसल्ली खुदा की तरफ से है क्योंकि वो रहमतों का बाप है और हर तरह की तसल्ली का खुदा है। हालेलुया। वो रहमतों का बाप और हर तरह की तसल्ली का खुदा है और वो हमें तसल्ली से इसलिए नहीं भरता कि वो तसल्ली हमारी जात तक कन्फाइंड हो, बल्कि वो चाहता है कि वो तसल्ली मल्टीप्लाई हो। वो तसल्ली मुझसे पास्टर कुंदन तक पहुंचे, वो तसल्ली मुझसे हमारी बहन डॉली तक पहुंचे, वो तसल्ली मुझसे मेरे भाइयों तक पहुंचे। हालेलुया, हालेलुया। कलाम कहता है उसने अपने बेटे को इस दुनिया में भेजा कि हर कोई जिंदगी पाए। हालेलुया, हालेलुया। तो मेरे अजीजों, मैं और आप जो उसमें बचाए गए हैं इसलिए बचाए गए हैं कि दूसरों को बचा लाएं। हालेलुया। हम इसलिए रहमत और बरकतों को एंजॉय करते हैं ताकि हमारी रहमतें और बरकतें दूसरों तक मल्टीप्लाई हों। हम इसलिए तसल्ली से भरे गए हैं ताकि हमारी तसल्ली जो है वो दूसरों की जिंदगियों में ट्रांसफर हो। और ये ईमानदारों के पास इख्तियार है। चर्च, ये आपके पास इख्तियार है। कलीसिया के पास ये इख्तियार है। ईमानदारों के पास ये इख्तियार है कि वो उस तसल्ली को दूसरों में ट्रांसफर कर सकते हैं। हालेलुया। आप दूसरों के लिए रहमतों को जारी कर सकते हैं, आप दूसरों के लिए बरकतों को जारी कर सकते हैं। और यह उस वक्त मुमकिन है जब यहोवा शालोम अपने बेटे के वसीला से हमारी जिंदगियों में मौजूद है। हालेलुया। वो यीशु जो कहता है अब मैं तुम्हारे साथ हूं, फिर तुम्हारे क्या हूंगा? अंदर हूंगा। और वो हमारे अंदर रहकर दूसरों के लिए उस तसल्ली और रहमतों और बरकतों का मंबा ठहरता है। हालेलुया, हालेलुया। बुलंद आवाज से कहेंगे हालेलुया, हालेलुया। मेरे अजीजों, यीशु की तसल्ली टेम्परेरी नहीं है, वक्ती नहीं है, बल्कि यीशु मसीह की तसल्ली दायमी है। कलाम कहता है आसमान और जमीन टल सकते हैं लेकिन मेरे मुंह की बातें हरगिज़ ना टलेंगी, हरगिज़ ना टलेंगी। आप देखें कलाम मुकद्दस में लिखा है कि जब वो बैतनिया में आया तो मरियम और मार्था जो थी वो रो रही थी क्योंकि उनका भाई 3 दिन से क्या था? मुर्दा था, कब्र में था और तसल्ली ना पाती थी। लिखा हुआ है कलाम में।
اور تسلی نہ پاتی تھی. ان کی زندگی میں تسلی نہیں تھی, کیونکہ وہ دکھ اور پریشانی سے بھری ہوئی تھی. ان کا اکلوتا بھائی ان سے جدا ہو چکا تھا. لیکن جب یسوع آیا اور مریم اسے ملنے کے لیے بھاگی, تو یسوع نے مریم سے کہا, بلکہ مریم نے یسوع سے کہا, اے استاد اگر تو یہاں ہوتا تو میرا بھائی, ہاللیلویا ہاللیلویا, اگر تو یہاں ہوتا تو میرا بھائی. تو یسوع نے کیا کہا, ایمان رکھ وہ جیتا ہے. ہاللیلویا ہاللیلویا, وہ کیا ہے, جیتا ہے, کیونکہ قیامت اور زندگی میں ہوں. قیامت اور زندگی کون ہے؟ یسوع مسیح ہے. اور کلام مقدس میں لکھا ہے, بڑی خوبصورت بات ہے عزیزو, اس بات کو سمجھنا ہے. آج اس بات کو سمجھنا ہے. ہم خدا سے تسلی چاہتے ہیں, ہم خدا سے اطمینان چاہتے ہیں, ہم خدا سے رحمتیں چاہتے ہیں, ہم خدا سے برکتیں چاہتے ہیں. لیکن کلام میں لکھا ہے کہ مریم کی تسلی لازر کے جی اٹھنے میں ہے. ہاللیلویا. مارتھا کی تسلی کس کے جی اٹھنے میں ہے؟ لازر کے جی اٹھنے میں ہے. اور یسوع مسیح نے قبر پر کھڑے ہو کر کہا, قبر کا پتھر ہٹاؤ. ہاللیلویا. قبر کے پتھر کو کیا کر دو؟ وہ یسوع مسیح جو با اختیار ہے, جس کے کہنے سے اندھے شفا پاتے ہیں, جس کے کہنے سے کوڑی پاک کیے جاتے ہیں, جس کے فرمانے سے مردے جی اٹھتے ہیں, کیا اگر وہ اس لازر کو کہے کہ لازر قبر میں سے نکلا, تو کیا اس کے اس حکم پر قبر کا پتھر نہیں ہٹے گا؟ بالکل ہٹے گا, بالکل ہٹ سکتا ہے. کیونکہ کلام میں لکھا ہے کہ جب یسوع مسیح ہیکل کی طرف آ رہے تھے, یروشلم میں داخل ہو رہے تھے, تو فقیوں اور فریسیوں نے کہا کہ تو انہیں خاموش کر. تو یسوع مسیح نے کہا, میں تم سے سچ کہتا ہوں, اگر یہ خاموش ہو جائیں تو پتھر کیا کریں گے؟ چلا اٹھیں گے. ہاللیلویا. پتھر کیا کریں گے؟ چلا اٹھیں گے. اور کلام مقدس میں لکھا ہے, خداوند یسوع مسیح نے کہا کہ اگر خدا چاہے تو ابراہیم کے لیے کس سے اولاد پیدا کر سکتا ہے؟ پتھروں سے اولاد پیدا کر سکتا ہے. اور یہی خدا ہمیں بیابان میں خشک چٹانوں سے پانی بہاتے ہوئے نظر آتا ہے. پتھر خدا کے اختیار سے باہر نہیں ہے, پتھر خدا کے اختیار کو مانتے ہیں. اور جب یسوع لازر کو قبر میں سے بلائے گا تو وہ پتھر ضرور ہٹ جائے گا. لیکن پھر بھی یسوع نے کہا, اس پتھر کو ہٹاؤ, اس پتھر کو کیا کرو؟ ہٹاؤ. کیونکہ میرا اور آپ کا یسوع چاہتا ہے کہ میں اور آپ یسوع مسیح کے ساتھ مل کر اس کام کو پورا کریں, جس کام کے لیے میں اور آپ بلائے گئے ہیں, جس کام کے لیے میں اور آپ بچائے گئے ہیں. کیونکہ خداوند یسوع مسیح ہماری شمولیت چاہتا ہے. ہاللیلویا. وہ ہماری شمولیت چاہتا ہے. کلام مقدس میں لکھا, انہوں نے پتھر ہٹایا اور یسوع نے کہا, اے لازر قبر میں سے نکلا. اور کلام مقدس میں لکھا, وہ کفن سمیت قبر میں سے نکل آیا. اور مریم اور مارتھا جو کچھ دیر پہلے دکھ اور مصیبت میں تھے, وہ یسوع مسیح کے وسیلہ سے اس تسلی سے بھر گئے. ہاللیلویا. آج بہت دفعہ میں اور آپ بہت سارے پتھروں کو اپنے اور یسوع کے بیچ میں کھڑے کیے ہوئے ہیں. بہت سارے پتھر ہماری رسائی کو خدا تک جانے سے روکے ہوئے ہیں. وہ آپ کی زندگی کا لالچ ہو سکتا ہے, وہ پتھر آپ کی زندگی کی بے روی ہو سکتی ہے, وہ پتھر آپ کی زندگی میں غیر معبودوں کے لیے آپ کی چاہت ہو سکتی ہے, وہ پتھر آپ کے دل کی سختی ہو سکتی ہے, وہ پتھر آپ کی زندگی میں ناراضگی یا غصے کی صورت میں ہو سکتا ہے. تو اگر ہم دائمی تسلی چاہتے ہیں,
اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم خدا سے اپنی رحمتوں اور برکتوں کو ریسیو کریں اور اس کی تسلی ہماری زندگی میں قائم ہو، تو کلیسیا ہمیں اس پتھر کو اپنی زندگی سے ہٹانا ہے. ہاللیلویا. That's our part. یہ ہمارا حصہ ہے. ہم اقرار کر کے ان پتھروں کو اپنی زندگی سے دور کرتے چلے جائیں اور اس دائمی تسلی سے بھرتے چلے جائیں. آج خداوند ہمیں اس تسلی سے بھرنا چاہتا ہے. یسوع ہمارے آنسوؤں کو پہنچنا چاہتا ہے. وہ ہمارے درد سے واقف ہے اور وہ ہمارے درد کی دوا بننا چاہتا ہے. اور یہ کب ممکن ہوگا؟ جب ہم اپنی زندگی سے ان پتھروں کو ہٹانا شروع کریں گے، اور جب ہم مقدس پولس کی طرح اس ایمان کا اظہار کریں گے کہ میرا خدا جو ہے وہ ہر طرح کی تسلی کا خدا ہے. ہاللیلویا. کیا کبھی آپ نے دعا میں کہا ہے کیا میرے خدا تو رحمتوں کا باپ ہے؟ کیا آپ نے کبھی اپنی دعا میں کہا ہے کہ تو ہر طرح کی تسلی کا خدا ہے؟ کیا ہم اپنے ایمان کا اظہار اپنی دعا میں قائم رکھتے ہیں؟ کیا ہماری دعا جو ہے وہ فقط خدا سے مانگنے کے لیے؟ کیا ہماری دعا میں خدا کی خدائی کا اقرار موجود ہے؟ بہت ضروری ہے کہ ہم اس کی خدائی کا اقرار کرتے چلے جائیں. کلام کہتا ہے خدا کو جان لینا کافی نہیں ہے، بلکہ اس کی خدائی کے لائق اس کی تعظیم جو ہے وہ ہم پر فرض ہے. ہاللیلویا. ہاللیلویا. میرے عزیزو، یسوع ایسی سلامتی دیتا ہے جو دنیا ہم سے کبھی چھین نہیں سکتی. آئے میرے ساتھ فلپیوں کے خط کے 4 باب کی 7ویں آیت کو ہم پڑھتے ہیں. فلپیوں کے نام پولس رسول کا خط اور اس کا 4 باب اور اس کی 7ویں آیت. کلام مقدس میں لکھا، تو خدا کا اطمینان جو سمجھ سے بالکل باہر ہے تمہارے دلوں اور خیالوں کو مسیح یسوع میں محفوظ رکھے گا. ہاللیلویا. ہاللیلویا. اور خدا کا اطمینان جو سمجھ سے بالکل باہر ہے، ایسا اطمینان جو انسان کے ادراک سے بالا تر ہے، جو انسان کی سمجھ سے کہیں زیادہ بڑا ہے. کلام کہتا ہے کہ وہ اطمینان جو ہے وہ تمہارے دلوں اور خیالوں کو مسیح یسوع میں محفوظ رکھے. ہاللیلویا. تمہارے دلوں اور تمہارے خیالوں کو مسیح یسوع میں کیا رکھے؟ کون سا اطمینان؟ جو ہمارے سمجھ سے باہر ہے، جس کو ہم سمجھ نہیں پاتے، جس کو ہم میئر نہیں کر پاتے، جس کو ہم ماپ نہیں سکتے. جیسا میرا اور آپ کا خدا آسمانوں سے بلند ہے، زمین کی گہرائیوں سے گہرا ہے، کائنات کی وسعتوں سے زیادہ وسیع ہے. کلام کہتا ہے کہ اسی طرح اس کا اطمینان ہمارے ادراک سے باہر ہے. آج میں اور آپ اس دور میں زندگی بسر کریں جہاں پر بہت ساری چیزیں ہمارے اطمینان کو ہم سے چھین لیتی ہیں، کیونکہ وہ اطمینان ہم اپنے معیار میں ڈھونڈ رہے ہیں، وہ اطمینان ہم اپنی خواہشات میں ڈھونڈ رہے ہیں، وہ اطمینان ہم اپنی ترجیحات میں ڈھونڈ رہے ہیں. لیکن میرے عزیز بہن اور بھائیوں، ہمارا دائمی اطمینان اور ہماری دائمی تسلی جو ہے وہ میرے اور آپ کے خداوند یسوع مسیح میں ہے. ہاللیلویا. آج مجھے اور آپ کو خداوند یسوع مسیح کی ضرورت ہے، کیونکہ کلام میں لکھا ہے اس کا نام عجیب، مشیر، خدائے قادر، ابدیت کا باپ اور سلامتی کا شہزادہ ہوگا. یعنی اس کی بادشاہت میں سلامتی ہے، اس کی بادشاہت میں اطمینان ہے، اس کی بادشاہت میں ابدی زندگی ہے، اور وہ اس بادشاہت کا شہزادہ ہے. آئیں، اگر ہم اس بادشاہت میں داخل ہونا چاہتے ہیں تو اس سلامتی کے شہزادے کو اپنی زندگی میں اتاریں. اگر ہم اس سلامتی کی بادشاہت کو اپنے گھروں میں چاہتے ہیں تو آئیں اس سلامتی کے شہزادہ کو اپنے گھروں میں اتاریں، کیونکہ وہ بھلا ہے اور اس کی شفقت کیا ہے؟ ابدی ہے.
وہ میری اور آپ کی ہلاکت نہیں چاہتا. وہ قطعاً نہیں چاہتا کہ میں اور آپ دکھوں اور مصیبتوں اور پریشانیوں میں گھرے رہیں، بلکہ وہ کہتا ہے تمہارا دل نہ گھبرائے، میں اپنا اطمینان تمہیں دیے جاتا ہوں. He has given us his own peace. اس نے وہ اطمینان ہمیں کسی اور سے لے کر نہیں دیا، بلکہ وہ خود سلامتی کا شہزادہ ہے، اور وہ کہتا ہے میں اپنا اطمینان تمہیں دیے جاتا ہوں. ہاللیلویا، ہاللیلویا. اور مجھے یوں لگتا ہے کہ جیسے وہ کہتا ہے میں اپنا دل جو ہے وہ نکال کے تمہیں دیتا ہوں. ہاللیلویا. بے اطمینانی کہاں ہوتی ہے؟ اس دل میں ہوتی ہے. ہمارا دل جو ہے وہ دکھوں سے، پریشانیوں سے بھرا رہتا ہے، اور ہم اسی دل کی تسلی کے لیے ہر وقت کوششیں جاری رکھتے ہیں. اور میرا اور آپ کا یسوع جو ہے وہ کہتا ہے میں نے اپنا اطمینان تمہیں دیا ہے، میں نے اپنی تسلی تمہیں دی ہے.